Hello student, I am Manisha Pandit and today I am dealing with the chapter Nursing Management of Patient with Disorder of Integumentary System. So basically integumentary system include skin, and what is the skin? Skin is the largest organ of the body which provide an external covering for body, separating and protecting the body's organ and tissue from the external environment. So firstly we are going to deal anatomy of the skin. So skin consists of three layers, that is epidermis, dermis and subcutaneous tissue. What is epidermis? It is non-vascular outermost layer continuously dividing cell. ठीक है. The next is dermis. Dermis is what? It is the largest portion of the skin providing strength and structure, consists of glands, hair follicles, blood vessels and nerve endings. ठीक है. Next is subcutaneous tissue and it is also called hypodermis. It is the innermost layer containing major vascular network, fat, nerves and lymphatics. This is all about anatomy of the skin. Next is function of the skin. There are so many functions of the skin in which include protection, sensory perception, fluid balance, temperature regulation, vitamin synthesis, in which vitamin D3, which is also called cholecalciferol, is synthesized by the skin when skin exposed to the ultraviolet light of the sun. Next is aesthetic. What is aesthetic? That is which provide beautiness and appearance. These are the function of the skin. Next we will go to the common dermatological terms which are used in integumentary disorder. So first is lichenification. What is lichenification? It is distinctive thickening of the skin. Next is crust. It is dried exudate of the body fluid. Next is erosion. What is erosion? Epithelial deficit is called erosion. Next is ulcer. Epithelial deficit. This is disruption of deep skin integrity. Next is atrophy. Atrophy is just loss of function or an acquired loss of substance, that is atrophy. And next is a scar. A scar is a skin secondary to trauma or inflammation. These are the dermatological terms which are used in integumentary disorders. So next is description of skin lesion. We have described lesion in two form or two category. So first is primary lesion and second is secondary lesion. What is primary lesion? Primary lesion is present by birth or acquired lesion later in the life. ये birth टाइम से present रहता है या तो हमारी लाइफ टाइम में कभी भी हम इसे एक्वायर करते हैं, उसे बोला जाएगा प्राइमरी लीजन. नेक्स्ट इज सेकेंडरी लीजन. दिस इज सेकेंडरी लीजन. व्हाट इज सेकेंडरी लीजन? व्हेन प्राइमरी लीजन चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग ट्रीटेड और मैनिपुलेटेड. जब कभी प्राइमरी लीजन को या तो ट्रीटमेंट के दौरान या तो मैनिपुलेट होता है, उसे हम प्राइमरी लीजन बोलेंगे, मतलब सेकेंडरी लीजन बोलेंगे. प्राइमरी लीजन को अगर ट्रीट कर रहे हैं उस दौरान उसमें जो चेंजेस आएंगे, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी लीजन्स. व्हाट टाइप ऑफ लीजन्स इंक्लूडेड इन प्राइमरी? सो बेसिकली वेसिकल्स, बुल्ला, pustules, macules, nodules, wheal, plaque, all these are included in primary lesion. And what is secondary lesion? Crust, scale, excoriation, lichenification, atrophy, scarring, ulcer, all these are included in secondary lesion. So firstly we will deal with primary lesion. Now बहुत सारे lesions में क्या होता है, कुछ सिमिलैरिटी होती है. सो हम लोग उसको एक कैटेगराइज करे हुए हैं. सो बेसिकली यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है
सर्कमस्क्राइब्ड, फ्लैट, नॉन पैल्पेबल चेंज इन स्किन कलर की, ठीक है, जिसमें दो टाइप है, मैक्यूल एंड पैचेस। सर्कमस्क्राइब्ड मीन्स इसका जो सराउंडिंग है, इसका जो बॉर्डर है वो पर्टिकुलरली डिफाइन होगा, ठीक है, फ्लैट रहेगा, कोई उभार नहीं, कोई एलिवेशन नहीं। नॉन पैल्पेबल मीन्स पैल्पेट नहीं होगा, ये फ्लैट है क्योंकि। चेंज इन स्किन कलर, कलर में चेंजेस हो सकते हैं, कभी पर्पल हो सकता है, कभी डार्क ब्लैक हो सकता है, डार्क ब्राउन हो सकता है। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, प्राइमरी लीजन में आएंगी और ये मैक्यूल और पैचेस कहलाएंगे। मैक्यूल और पैचेस में डिफरेंस क्या है? मैक्यूल इज़ स्मॉल अप टू 1 सेंटीमीटर। एग्जाम्पल पिटेशिया, बहुत छोटे छोटे बहुत माइन्यूट से पैचेस जो होंगे उसको हम लोग मैक्यूल बोलेंगे, स्मॉल सेंटीमीटर से भी कम या 1 सेंटीमीटर तक। एंड व्हाट इज़ पैच? पैच इज़ नथिंग, जस्ट लार्जर साइज ऑफ द मैक्यूल। मैक्यूल का अगर लार्जर साइज हो रहा है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो रहा है, उसको हम पैच बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है विटिलिगो। वी विल फर्दर सी द पिक्चर ऑफ विटिलिगो। नेक्स्ट इज पैल्पेबल एलिवेटेड सॉलिड मास। नाउ फर्स्ट जो था वो नॉन पैल्पेबल था, हमको अब डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। फर्स्ट जो है वो नॉन पैल्पेबल है, नेक्स्ट आने वाले जो एग्जांपल्स है वो पैल्पेबल है और एलिवेटेड है, ठीक है। पिछला वाला फर्स्ट वाला क्या था? फ्लैट था, पिछला वाला फ्लैट था, नॉन पैल्पेबल था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? पैल्पेबल होगा और एलिवेटेड सॉलिड मास होंगे। सो उसका एग्जाम्पल है पैप्यूल, प्लैक, नोड्यूल एंड व्हील। पैप्यूल क्या है? इट इज़ अप टू 0.5 सेंटीमीटर एलिवेटेड, ठीक है। और प्लैक क्या है? एलिवेटेड सरफेस मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे मोर देन 0.5 सेंटीमीटर होगा, मतलब साइज़ बढ़ा हुआ रहेगा। एंड नोड्यूल इज़ डीपर एंड फर्मर देन पैप्यूल। नोड्यूल क्या होगा? पैप्यूल से डीपर और फर्म होगा, इसका साइज़ 0.5 टू 1 to 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। एग्जाम्पल है इसका ट्यूमर। एंड व्हाट इज़ व्हील? व्हील इज़ इरेगुलर सुपरफिशियल एरिया ऑफ लोकलाइज्ड स्किन एडिमा, ठीक है। व्हील क्या रहेगा? इरेगुलर शेप का रहेगा, सुपरफिशियल लोकलाइज्ड स्किन एडिमा हो जाएगा, उसको हम लोग व्हील बोलेंगे, ठीक है। दीज ऑल आर द पैल्पेबल एलिवेटेड सॉलिड मासेस। नोट दैट these are solid masses, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज थर्ड वन इज superficial elevation of the skin formed by free fluid in the cavity in the skin layer. Now difference, look at the difference. Here is mass is solid, okay, and here the cavity is filled with fluid. So you can get clearance with this difference, ठीक है। Now what are the types of this? First is vesicle, next is bulla and third is pustule, ठीक है। Vesicle is up to 0.5 centimeter filled with crystal clear fluid, that is serous fluid. इसका एग्जाम्पल है herpes simplex, ठीक है। Now next is bulla. Bulla is what? मोर देन 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो सकता है, इसमें भी क्रिस्टल क्लियर फ्लूइड फिल होगा। और इसका एग्जाम्पल है जब सेकेंड डिग्री बर्न होता है, जो ब्लिस्टर्स फॉर्म होते हैं, वो एग्जाम्पल होते हैं बुल्ला के, ठीक है। नेक्स्ट इज पस्ट्यूल। हियर इज़ द डिफरेंस बिटवीन बुल्ला वेसिकल एंड पस्ट्यूल। पस्ट्यूल मीन्स द कैविटी इज फिल्ड विथ पस। पस्ट्यूल, that as the name suggests, the cavity is filled with pus, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका impetigo. Here spelling is mistake, IMPETIGO will be the spelling. So impetigo and acne is the example of pustule, ठीक है। Next is secondary lesion. As I already told you that the secondary lesion is when primary lesion changes as a result of being treated or manipulated. So first is loss of skin surface. यहाँ पे skin surface का loss हो जाना. So इसके examples हैं erosion, ulcer, fissure. erosion क्या है? loss of superficial epidermis. जो superficial epidermis है उसका loss हो जाने को erosion बोलते हैं. Next is what is ulcer? Ulcer is
नथिंग जस्ट लाइक इल्यूजन बट इट इज़ डीपर देन इल्यूजन, ठीक है। डीप लॉस ऑफ अ स्किन सरफेस होगा, इट कैन ब्लीड, ब्लीडिंग हो सकती है, स्कार फॉर्मेशन हो सकता है, उसको हम लोग अल्सर बोलेंगे। नेक्स्ट इज फिशर, फिशर इज़ लीनियर क्रैक इन द स्किन, एक लाइन से क्रैक हो जाने को हम लोग बोलेंगे लीनियर क्रैक, जैसे कि एड़ियाँ फट जाती हैं उसको बोलते हैं लीनियर क्रैक और फिशर। इसका एग्जांपल है एथलीट फुट, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन स्किन सरफेस, ये स्किन सरफेस के ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। अब तक था स्किन सरफेस लॉस हो जा रहा था, लेकिन नेक्स्ट है अभी हम स्किन सरफेस के ऊपर पढ़ेंगे, ऑन स्किन सरफेस। सो फर्स्ट इज क्रस्ट एंड नेक्स्ट इज स्केल। व्हाट इज क्रस्ट? ड्राइड रेसिड्यू ऑफ सीरम, पस और ब्लड। जो सीरम है, पस है, ब्लड है, इनका अगर रेसिड्यू ड्राई हो जा रहा है, इनका जो कंटेंट है वो अगर ड्राई हो करके आउट हो रहा है, शेड आउट हो रहा है, उसको हम लोग क्रस्ट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है इम्पेटो, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केलिंग, अ थिन फ्लेक ऑफ एक्सफोलिएटिव एपिडर्मिस, ठीक है। एपिडर्मिस क्या हो रहा है? एक्सफोलिएट होकर के पतली पतली फ्लेक्स में बाहर निकल रहे हैं, झड़ रहे हैं, जैसे कि डैंड्रफ, ड्राई स्किन, सोरियासिस, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केल। नेक्स्ट इज वस्कुलर स्किन लीजन। वस्कुलर स्किन लीजन क्या होता है? अ लीजन दैट ओरिजिनेट फ्रॉम अ ब्लड वेसल, जो कि ब्लड वेसल से ओरिजिनेट होता है। सो फर्स्ट इज पेटेशिया। नाउ what is petechia? It is flat red or purple rounded approximately 1 to 3 millimeter in diameter associated with bleeding tendencies, ठीक है। Next is ecchymosis. What is ecchymosis? It is just like petechia but there is difference in size. Ecchymosis is larger than petechia, ठीक है। Then next is venous star. इट इज़ नथिंग मोर देन अ स्टार लाइक शेप। इसमें क्या होता है? ऑक्टोपस जैसा या स्टार शेप जैसा दिखता है, जिसको हम लोग चेरी एंजियोमा भी बोलेंगे या स्पाइडर एंजियोमा भी बोलेंगे, ठीक है। दीज आर द विनस स्टार। नेक्स्ट इज, हमको अगर असेसमेंट करना है, हमको अगर मैनेजमेंट करना है किसी भी डिजीज़ कंडीशन का, सो बेसिकली फर्स्ट स्टेप इसका होता है असेसमेंट। So here we have to do the assessment of the skin, which include a thorough history taking, inspection, palpation of the skin. हिस्ट्री टेकिंग में हमको सब्जेक्टिव डाटा लेना होता है एंड ऑब्जेक्टिव डाटा लेना होता है। सब्जेक्टिव डाटा इज़ व्हाट? द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द सब्जेक्ट, दैट इज़ पेशेंट, एंड ऑब्जेक्टिव डाटा इज़ व्हाट? द डाटा विच वी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द पेशेंट, ठीक है। सो हमको असेसमेंट करना है, हिस्ट्री टेकिंग लेनी है। हिस्ट्री टेकिंग में हमको पेशेंट का हर चीज़ पूछना है, लाइक चीफ कंप्लेन क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कितना ईचिंग होता है, बहुत ज़्यादा रैशेस है, लीजन फॉर्म हो रहा है, कोई स्किन चेंजेस हो रहा है, हेयर, नेल, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पूछना है। कोई सिम्टम्स कितने दौरान, कितने ड्यूरेशन के लिए रहता है, लोकेशन क्या है उसका, क्या फैक्टर है जो इन सिम्टम्स को बढ़ाते हैं, एग्रेवेट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट से पूछनी है चीफ कंप्लेन में। नेक्स्ट इज पास्ट हेल्थ हिस्ट्री लेनी है पेशेंट को। आपको कभी कोई डिजीज़ से रिलेटेड, स्किन डिजीज़ से रिलेटेड कोई डिजीज़ हुई है या किसी फूड से आपको एलर्जी है, ये सारी चीज़ें हमको पूछनी है। नेक्स्ट मेडिकेशन। आजकल क्या होता है, मेडिकेशन बहुत ज़्यादा ओवर द काउंटर ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, लाइक पेन किलर। कभी भी हमको हेडेक हो रहा है तो हम एक फटाक से एस्पिरिन खा लेते हैं, छोटी सी कोई भी टैबलेट्स यूज़ कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, OTC हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स है, मेडिसिन है, जिनको लेने से कभी कभी क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन शो होते हैं। सो हमको पेशेंट को पूछना है कि आपने कोई ओवर द काउंटर ड्रग लिया है, जैसे लाइक विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज़ कर लेते हैं। सो हमको पूछना है कि आपने लिया है या नहीं लिया है, किसी टाइप की सर्जरी हुई है आपकी, कॉस्मेटिक सर्जरी है, बायोप्सी हुआ है, प्रीवियसली कोई सर्जरी है, या फिर कोई रेडियोथेरापी या किसी और चीज़ से एक्सपोजर हुआ है, ये सब हमको पूछना है। नेक्स्ट इज़ फैमिली हिस्ट्री लेना है,
ठीक है। फैमिली हिस्ट्री लेंगे, देन साइकोलॉजिकल हिस्ट्री भी ले सकते हैं, साइको सोशल हिस्ट्री भी ले सकते हैं, पेशेंट कौन से ऑक्यूपेशन से है, डेली रूटीन क्या है पेशेंट का, ये सारी चीज़ें पूछनी है, ठीक है। देन न्यूट्रिशनल पैटर्न, पेशेंट का न्यूट्रिशनल पैटर्न क्या है, एलिमिनेशन पैटर्न क्या है, स्लीप रेस्ट टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हमको पेशेंट को पूछना है। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव डाटा विच इंक्लूड इंस्पेक्शन एंड पैल्पेशन। सो हमको इंस्पेक्ट करना है पेशेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, ये है ड्रग रिएक्शन का, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग रिएक्शन हुआ है इसको। नेक्स्ट इज ड्रग रिएक्शन ड्यू टू एमॉक्सिसिलिन एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो इसलिए हमको पूछना है पेशेंट को कि आपने कोई ओवर द काउंटर ड्रग लिया है कि नहीं, ठीक है। ये दिस इज़ ऑल्सो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड लाइक डाइक्लोफेन है, ये सारी क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। अगर हम इसको टॉपिकली यूज़ कर रहे हैं, मतलब स्किन सरफेस पे डायरेक्टली अप्लाई कर रहे हैं, सो दिस दे कैन कॉज दिस टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट। सो वी हैव टू आस्क देम फॉर द नेक्स्ट इज असेसमेंट ऑफ जनरल अपीयरेंस ऑफ द स्किन, ठीक है। जनरल अपीयरेंस हम लोग को ऑब्ज़र्व करना, इंस्पेक्ट करना है। इसके लिए पेशेंट का स्किन कलर देखेंगे, लीजन देखेंगे, वस्कुलरिटी, सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करेंगे। नेक्स्ट है पैल्पेशन, हमको स्किन टर्गर पैल्पेट करना है, पैल्पेट करके देखना है कितनी टर्जिडिटी है इसकी, मोबिलिटी चेक करना है, एडिमा है या नहीं चेक करना है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ड्राइनेस, ऑयलनेस, टेंडरनेस, स्किन टेक्सचर, ये सारी चीज़ें हमको पैल्पेट करके देखना है पेशेंट का। नेक्स्ट इज़ कलर चेंज, बहुत सारे कलर चेंज के लिए टर्म्स यूज़ किया गया है, लाइक हाइपोपिगमेंटेशन एंड डीपिगमेंटेशन। हाइपरपिगमेंटेशन दैट मीन्स पिगमेंटेशन जब ज़्यादा हो जाता है, हाइपो मीन्स कम हो जाता है, कलर नॉर्मल कलर से कम हो जा रहा है, और डीपिगमेंटेशन मतलब बिल्कुल ही पिगमेंटेशन ख़त्म हो गया, वाइट हो गया, वहाँ पे कलर हो गया, दिस इज कॉल्ड डीपिगमेंटेशन। सो फर्स्ट इज रेडनेस, दिस कैन बी ड्यू टू फीवर, अल्कोहल इंटेक, लोकल इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज bluish coloration, this is also called cyanosis, it is due to decreased oxygen supply due to chronic heart and lung disease, exposure to the cold and anxiety, ठीक है। हमको ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, देखनी है। नेक्स्ट इज येलोइश कलर, दिस कैन बी ड्यू टू increased serum bilirubin concentration due to liver disease और red blood cell और hemolysis, ठीक है, जिसको हम जॉन्डिस भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ब्राउन टैन इज ऑल्सो कॉल्ड एडिशंस डिजीज, दिस इज ड्यू टू कॉर्टिसोल डिफिशियंसी स्टिमुलेटेड इंक्रीज्ड मेलानिन प्रोडक्शन, दिस कैन बी बर्थ मार्क, क्लोआज्मा ऑफ द प्रेगनेंसी एंड सन एक्सपोजर। नेक्स्ट इज पेल एल्बिनिज्म, हम बहुत सारे पर्सन को देखे होंगे जिसका फेस का कलर, बॉडी का कलर बिल्कुल वाइट हो गया है, कोई भी पिगमेंटेशन नहीं होती है उनके बॉडी में, मेलानिन सिक्रेशन नहीं होता है उनकी बॉडी में, मीन्स टोटल एब्सेंस ऑफ द पिगमेंट मेलानिन, दिस इज़ बिकॉज दे आर वाइट। सो इसका एग्जाम्पल है विटिलिगो, हियर इज एग्जाम्पल ऑफ विटिलिगो। Destruction of melanocyte in circumscribed area of the skin, circumscribed area means जो बाउंड्रीज है वो डिफाइंड रहता है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग सर्कमस्क्राइब्ड एरिया। सो यहाँ पे मेलानोसाइट एक पर्टिकुलर सेल्स है जो कि मेलानिन पिगमेंट सिक्रीट करते हैं, उनका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज diagnostic test, what are the diagnostic tests we can perform to detect इंटीग्यूमेट्री डिसऑर्डर्स। सो फर्स्टली स्किन बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अब स्किन बायोप्सी के लिए क्या करना होगा, रिमूवल ऑफ द पीस ऑफ स्किन बाय शेविंग, पंचिंग और एक्सीजन टेक्निक फॉर अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द स्किन टू डिटरमाइन histology of the cell to rule out malignancy and to establish an exact diagnosis, ठीक है। This is skin biopsy. Next is patch testing. Patch testing is just to identify the substance to which patient has developed an allergy, ठीक है। Next is potassium hydroxide test. Basically potassium hydroxide test
help us to identify fungal skin infection. Next is gram staining and culture with sensitivity test. What is this? It helps to identify the organism responsible for an underlying infection with the effective drug identification. इसमें हमको बेसिकली ये पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है अंडरलाइंग इन्फेक्शन के लिए और उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हमको कौन सा इफ़ेक्टिव ड्रग देना है, ये भी हमको ग्राम स्टेनिंग और कल्चर से पता चल जाता है. नेक्स्ट इज स्लिट स्किन स्मीयर. व्हाट इज स्लिट? SSS. It is to identify the causative agent of leprosy. Leprosy is a disease which is caused by Mycobacterium leprae. ठीक है. नेक्स्ट इज डिसऑर्डर ऑफ द स्किन. अब हम पूरे चैप्टर्स में क्या क्या डिसऑर्डर है, फर्स्टली हम उसको क्लासीफाई कर लिए हैं किस किस डिजीज़ की वजह, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है. नेक्स्ट हम लोग वन बाय वन उसको डील करेंगे. सो फर्स्टली हियर इज़ इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जेटिक स्किन डिसऑर्डर. ये किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा है, इट इज़ जस्ट इन्फ्लामेशन और एलर्जिक रिएक्शन दैट कैन बी ड्यू टू एनी कॉजेस. ठीक है. सो फर्स्टली इसका टाइप्स में आता है एक्ने, नेक्स्ट इज सोरियासिस, देन नेक्स्ट इज एटोपिक डर्माटाइटिस, नेक्स्ट इज कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस. ठीक है. दीज आर द इन्फ्लामेटरी एलर्जिक स्किन डिसऑर्डर. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सो एज द नेम सजेस्ट all the disorder include bacterial invasion in the body. ठीक है. So what are the disease included in bacterial infection are impetigo, boil, that is also called furuncle, then carbuncle, then cellulitis. ठीक है. Here is a spelling mistake, so I have written it for you. And next is disorder of the skin. Okay. In which fungal disorder. Fungal infection causes many of disease like candidiasis, Taenia capitis, Taenia corporis, Taenia pedis, in which we are going to deal with Taenia pedis only. ठीक है. Next is viral infection. Viral infection is caused by virus only. So here is example herpes simplex and herpes zoster and rats. ठीक है. These all are the disorder which we are going to deal with, and we will continue with the next lecture. Thank you.